یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اب آپ خبریں سنیے. وزیر اعظم کے مطابق بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت. ملک کی نوجوان طاقت کے بلبوتے پر بنا. نوجوانوں کے قومی دن کے موقع پر کیا نیشنل یوتھ فیسٹیول کا افتتاح. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھارت اور بیرون ملک کے صنعت کاروں کو جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیا مدعو. اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر میں پنچایت انتخابی فہرست 2024 کو اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخوں کو کیا مشتہر. اور وادی کے مختلف اضلاع میں منشیات پر قابو پانے کے لیے پولیس متحرک. پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت ملک کی نوجوان طاقت کی بدولت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت اور ملک میں تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن گیا ہے. وہ آج سپہر مہاراشٹر کے ناسک میں 27ویں قومی یوتھ فیسٹیول کا افتتاح کرنے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. نیشنل یوتھ ڈے سوامی وویکانند کے جنم دن کے موقع پر ہر سال 12 جنوری کو منایا جاتا ہے. وزیر اعظم نے سوامی وویکانند کو ان کے جنم دن کے موقع پر خراج عقیدت ادا کیا جنہوں نے بھارت کی روحانی قدروں اور ثقافت کو عالمی سطح پر پہنچایا. قوم کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سوامی وویکانند کو پکارا اور کہا کہ سوامی جی نے برطانوی راج کے دنوں میں ملک میں ایک نئی توانائی پیدا کی. انہوں نے سری اروبندو کو بھی یاد کیا اور کہا کہ سوامی وویکانند اور سری اروبندو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہمارے ملک کا مستقبل ملک کے نوجوانوں پر منحصر ہے. مودی نے شہریوں سے 22 جنوری سے پہلے ملک کے تمام مذہبی مقامات کو صاف کرنے کی اپیل کی. اس سے پہلے وزیر اعظم نے ایک روڈ شو میں حصہ لیا اور معروف کالارام مندر رام کنڈ کا دورہ کیا اور گوداوری ندی کی مہا آرتی کی. بعد ازاں مہاراشٹر کے اپنے دن بھر کے دورے کے دوران وزیر اعظم نے 30,500 کروڑ روپے سے زیادہ کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فلسفی اور روحانی پیشوا سوامی وویکانند کو ان کے یوم پیدائش اور نوجوانوں کے قومی دن کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ سوامی وویکانند ایک عظیم روحانی پیشوا اور مسلح تھے جنہوں نے بھارت کے لوگوں کو ان کی مالا مال ثقافتی وراثت سے واقف کرنے کی خاطر ملک کے مختلف حصوں کا سفر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوامی وویکانند نے نوجوانوں کو ملک کی تعمیر اور انسانیت کی خدمت کرنے نیز بھارت کی روحانی قدروں کو مغربی ملکوں تک پہنچانے کی ترغیب دی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی سوامی وویکانند جی کو ان کی جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. نوجوانوں کے قومی دن پر ایل جی نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ سوامی وویکانند جی کی عظیم تعلیمات کو گہرائی سے سمجھیں اور ایک متحرک خود انحصار اور ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے خود کو وقف کریں. ادھر وادی کے مختلف علاقوں میں بھی نیشنل یوتھ ڈے کی مناسبت سے کئی پروگرام منعقد کیے گئے. ان پروگراموں کا اہتمام نہرو یوا کیندروں کی طرف سے کیا گیا تھا. اونتی پورہ گورنمنٹ کالج گریز، گورنمنٹ ڈگری کالج اجس بانڈی پورہ، منی سیکریٹریٹ بارامولہ اور دیگر مقامات سے اس طرح کے پروگرام منعقد ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھارت اور بیرون ملک کے صنعت کاروں کو جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کا مطلب بھارت کے اتحاد میں سرمایہ کاری ہے. وہ آج گجرات میں وائبرنٹ گجرات گلوبل سمٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے جس دوران انہوں نے جموں کشمیر میں مختلف سیکٹروں میں دستیاب منفرد اقتصادی مواقع کو اجاگر کیا. منوج سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں جموں کشمیر میں تجارت کے موافق ماحول بنایا گیا ہے جہاں اقتصادی استحکام، ہنرمند افرادی قوت موجود ہے. اس کے علاوہ شعبہ سیاحت، ہاسپٹیلٹی، زراعت، باغبانی، ہینڈی کرافٹ، ہینڈلوم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مال سازی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی کافی ساری گنجائش موجود ہے.
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले चंद वर्षों के मुतवातिर बदलाव से जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में तवील मुद्दती सरमाकारी के लिए एक मुनासिब और महफूज माहौल फराहम हो गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा मुनफरिद मौक़ों को सरमाकारी के जरिए बरोकार लाया जा सकता है, जिसकी बदौलत रोजगार के बेशबहा मौक़े भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का 55% हिस्सा हरियाला है, जो इसे रहने और काम करने के मुवाफिक बनाता है। उन्होंने यहां तक कहा कि शहरों में भी इस्लाहात की बदौलत जिंदगी जीने का मयार बहुत बेहतर हो गया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर ने महकमा सन्नत और तिजारत के जरिए कई सरकर्दा सन्नतों के साथ मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए। इस सेशन का एहतमाम जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने एसोचेम के बाहमी इश्तराक से किया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबी फहरिस्त 2024 को अपडेट करने की तारीखों को मुश्तहर किया है। कमीशन की तरफ से जारी करदा नजरसानी के शेड्यूल के मुताबिक पंचायत इंतखाबी फहरिस्त के मसवदे की इशाअत 15 जनवरी से शुरू होगी। 1 जनवरी 2024 को उन तमाम लोगों के लिए अहलियत की तारीख के तौर पर मुकर्रर किया गया है जो 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के अहल हो चुके हैं। इसी तरह दावे दायर करने और नामों में तस्सीह करने के लिए एतराजात की मुद्दत 15 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक होगी। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से दावों और एतराजात को निपटाने की तारीख 16 फरवरी होगी, जबकि इंतखाबी फहरिस्त 2024 की हतमी इशाअत 26 फरवरी 2024 को की जाएगी। शेड्यूल में यह भी कहा गया है कि इस मकसद के लिए पोलिंग बूथ के मकामात पर खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी.के. बिरदिंग ने आज जिला बारामुल्ला का दौरा करके वहां पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की कारगुजारी का जायजा लिया। इस मौके पर आवाम से बात करते हुए उन्होंने मनशियात के खात्मे तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखने का यकीन दिलाया। उन्होंने जिला बारामुल्ला में नार्को टेररिज्म और मनशियात के खिलाफ बरसर पैकार रहने के लिए बारामुल्ला पुलिस की सराहना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मनशियात के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर पुलिस को जरूर मुतला करें। कश्मीर वादी में मनशियात का फैलाव रोज बरोज एक संगीन शक्ल इख्तियार कर रहा है और इस बिद्दत में मर्दोजन का ज्यादा से ज्यादा शिकार होता जाना एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जिला गांदरबल में मनशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए इंतजामी सतह पर कई सारे इकदाम किए जा रहे हैं। तफसीली रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। इस बहरान पर हुकूमत का फार्वर्ड अमल नशा मुक्त इंडिया और नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर में मनशियात के इस्तेमाल के फैलाव को रोकने के मकसद के साथ शुरू किया गया था। जिला गांदरबल में मनशियात से मुतलिक सरगर्मियों नौजवानों की शमूलियत एक तशवीशनाक हद से गुजर रही है। ताहम जिला में मनशियात के वबा से निपटने के लिए कुछ जरूरतमंदाना इक़दाम किए गए हैं। SSP गांदरबल निखिल बोरकर ने इस नुमाइंदे को बताया कि गुज़श्ता साल जिले में मनशियात फरोशों के खिलाफ 33 केस रजिस्टर किए गए हैं और 47 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 4 अफराद को PSA के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान इनके कब्जे से लगभग 17,42,000 रुपये मालियत के नशे आवर अद्वियात भी जब्त किए गए हैं। एक जिम्मेदार समाज के बतौर हमें इस वसी खतरे को तस्लीम करना चाहिए, जबकि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का इनिसार हुकूमती इक़दामात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और कम्युनिटी की फाल शमूलियत के दरमियान बाहमी ताउन पर मबनी है। हम मिलकर मनशियात की लत के तबाकुन चक्कर को खत्म कर सकते हैं, जबकि मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज, सेहतमंद और मनशियात से पाक माहौल बना सकते हैं। खबरों के लिए गांदरबल से मैं साबिर हूं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में मनशियात के खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। जिला को मनशियात से साफ पाक बनाने के लिए मटन पुलिस की एक खुसूसी कार्रवाई में गैर कानूनी शराब की 867 बोतलें और 10 किलोग्राम चर्स बरामद कर लिया गया है। तफसीली रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे। पुलिस के
एक सीनियर अफसर ने इस तर्जुमान को बताया कि एक मुसद्दिका इतला मिलने पर पुलिस स्टेशन मटन के एहलकारों ने स्टेशन हाउस ऑफिसर मटन की क़यादत में सीर हमदान इलाके में छापे के दौरान ये कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने इस कार्रवाई में स्विफ्ट डिजायर और बैलिनो गाड़ियों के अलावा एक केटीएम मोटरसाइकिल और नकदी 13,325 रुपए जब्त किए। दरियास्ता अनंतनाग के पुलिस चीफ डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने पुलिस टीम की इस कार्रवाई को काफी सराहा है और साथ ही उन्होंने समाज के कम्युनिटी लीडर, सिविल सोसाइटी मेंबरों पर जोर दिया कि सेहतमंद मुआशरा तामीर करने के लिए वो पुलिस का हाथ बटाने में अपनी सलाहियतों को बरोकार लाए। अभी तक इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तहकीकात मजीद जारी है। आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन के शोबे खबरों के लिए अनंतनाग सीर से मैं तसद्दुक रशीद। और अब चंद खबरें इख्तिसार के साथ। उधर शोपियां जिले में नारवा रावलपोरा क्रॉसिंग पर पुलिस के एक नाके के दौरान शौकत अहमद नायकू साकिना सैदपोरा बाला नामी एक मनशियात स्मगलर को दर लिया गया। उसके कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत का ब्राउन शुगर बरामद कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा शकील उर रहमान ने आज जिले के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का मुआयना करके इसके कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें नशा मुक्त भारत अभियान पर अमल आवरी की निस्बत जानकारी दी गई। कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की सरगर्मियां बदस्तूर जारी हैं। जिला पुलवामा में ये यात्रा अभी तक 190 पंचायती इलाकों और 69 म्युनिसिपल वार्डों का अहाता कर चुकी है। डिप्टी कमिश्नर कोलगाम अतहर आमिर खान ने आज मेन मार्केट कोलगाम से बस स्टैंड चवलगाम तक दौरा करके बाजार में तिजारती सरगर्मियों और दीगर उमूर का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों और मार्केट एसोसिएशनों के नुमाइंदों के मसाइल सुने, जिन्होंने मेन मार्केट की तरक्की और इसकी आराइश बढ़ाने की जरूरत उजागर की। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के बाजारों में सफाई सुथराई बनाए रखने पर जोर दिया और इस सिलसिले में उन्होंने बुनियादी ढांचे की फराहमी में इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत और डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शर्पा ने जिले के डाक बंगला में मुश्तरका तौर पर एक अवामी दरबार की सदारत की। अवामी दरबार में लोगों के नुमाइंदों, मुख्तलिफ वफूद, दीगर मुतालिकीन और आम लोगों को अपने मसाइल और मुतालबात उजागर करने का मौका फराहम हो गया। मौसम। कश्मीर वादी में खुश्क मौसमी सूरत हाल के चलते सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।